حکایت ایک ظالم بادشاہ اور جنگل کا درویش۔ بہت سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے جنگل گیا اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ کر ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نیک بزرگ اللہ والے سکون سے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، اے بوڑھے، کیا تو جانتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں اس سلطنت کا مالک ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا، بیٹا، مالک صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اگر تو اتنا ہی اللہ والا ہے تو دکھا مجھے کوئی کرامت، ورنہ میں تیری جھونپڑی گرا دوں گا۔ بزرگ نے ٹھنڈی سانس بھری اور زمین سے ایک خشک ٹہنی اٹھائی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور بادشاہ سے کہا، اسے پکڑو۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ لکڑی پکڑی وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ بادشاہ خوف سے کانپنے لگا اور اس نے فوراً وہ لکڑی پھینک دی۔ بزرگ نے دوبارہ اسے اٹھایا تو وہ پھر سے وہی پرانی لکڑی بن گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے بادشاہ، جب ایک معمولی لکڑی اللہ کے حکم سے سانپ بن کر تجھے گرا سکتی ہے تو سوچ وہ خدا کتنا طاقتور ہوگا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ حکومت، یہ ٹھاٹ باٹے سب فانی، ختم ہونے والی ہے، صرف نیکی اور ایمان باقی رہے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ وہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ظلم و زیادتی کی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران بن گیا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حکایت ایک ظالم بادشاہ اور جنگل کا درویش۔ بہت سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے جنگل گیا اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ کر ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نیک بزرگ اللہ والے سکون سے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، اے بوڑھے، کیا تو جانتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں اس سلطنت کا مالک ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا، بیٹا، مالک صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اگر تو اتنا ہی اللہ والا ہے تو دکھا مجھے کوئی کرامت، ورنہ میں تیری جھونپڑی گرا دوں گا۔ بزرگ نے ٹھنڈی سانس بھری اور زمین سے ایک خشک ٹہنی اٹھائی۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور بادشاہ سے کہا، اسے پکڑو۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ لکڑی پکڑی وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ بادشاہ خوف سے کانپنے لگا اور اس نے فوراً وہ لکڑی پھینک دی۔ بزرگ نے دوبارہ اسے اٹھایا تو وہ پھر سے وہی پرانی لکڑی بن گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے بادشاہ، جب ایک معمولی لکڑی اللہ کے حکم سے سانپ بن کر تجھے گرا سکتی ہے تو سوچ وہ خدا کتنا طاقتور ہوگا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ حکومت، یہ ٹھاٹ باٹے سب فانی، ختم ہونے والی ہے، صرف نیکی اور ایمان باقی رہے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا۔ وہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ظلم و زیادتی کی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران بن گیا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حکایت ایک ظالم بادشاہ اور جنگل کا درویش۔ بہت سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے جنگل گیا اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ کر ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نیک بزرگ اللہ والے سکون سے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، اے بوڑھے، کیا تو جانتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں اس سلطنت کا مالک ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا، بیٹا، مالک صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔
बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तो इतना ही अल्लाह वाला है तो दिखा मुझे कोई करामत, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पाकर इस पर घूमता और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। ओ बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे डरा सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब फानी, खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिल गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत, एक जालिम बादशाह और जंगल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, हे बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तो इतना ही अल्लाह वाला है तो दिखा मुझे कोई करामत, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पाकर इस पर घूमता और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। ओ बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ए बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे डरा सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब फानी, खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिल गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत, एक जालिम बादशाह और जंगल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ये बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दिखा मुझे कोई करामत, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर फूंका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। ओ बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गया। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे डरा सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया।
یہ حکومت، یہ ٹھاٹ باٹے سب فانی ختم ہونے والی ہے، صرف نیکی اور ایمان باقی رہے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، وہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ظلم و زیادتی کی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران بن گیا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حکایت: ایک ظالم بادشاہ اور جنگل کا درویش۔ بہت سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے جنگل گیا اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ کر ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نیک بزرگ اللہ والے سکون سے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، اے بوڑھے، کیا تو جانتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں اس سلطنت کا مالک ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا، بیٹا، مالک صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اگر تو اتنا ہی اللہ والا ہے تو دکھا مجھے کوئی کرام، ورنہ میں تیری جھونپڑی گرا دوں گا۔ بزرگ نے ٹھنڈی سانس بھری اور زمین سے ایک خشک ٹہنی اٹھائی۔ انہوں نے کچھ پاؤ کر اس پر پھونکا اور بادشاہ سے کہا، اسے پکڑو۔ وہ بادشاہ نے جیسے ہی وہ لکڑی پکڑی وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ بادشاہ خوف سے کانپنے لگا اور اس نے فوراً وہ لکڑی پھینک دی۔ بزرگ نے دوبارہ اسے اٹھایا تو وہ پھر سے وہی پرانی لکڑی بن گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے بادشاہ، جب ایک معمولی لکڑی اللہ کے حکم سے سانپ بن کر تجھے ڈرا سکتی ہے تو سوچ وہ خدا کتنا طاقتور ہوگا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ حکومت، یہ ٹھاٹ باٹے سب فانی ختم ہونے والی ہے، صرف نیکی اور ایمان باقی رہے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، وہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ظلم و زیادتی کی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران بن گیا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حکایت: ایک ظالم بادشاہ اور جنگل کا درویش۔ بہت سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دن وہ شکار کے لیے جنگل گیا اور اپنے سپاہیوں سے بچھڑ کر ایک پرانی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نیک بزرگ اللہ والے سکون سے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، اے بوڑھے، کیا تو جانتا ہے تیرے سامنے کون کھڑا ہے؟ میں اس سلطنت کا مالک ہوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور کہا، بیٹا، مالک صرف اللہ کی ذات ہے، ہم سب تو یہاں مسافر ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اگر تو اتنا ہی اللہ والا ہے تو دکھا مجھے کوئی کرام، ورنہ میں تیری جھونپڑی گرا دوں گا۔ بزرگ نے ٹھنڈی سانس بھری اور زمین سے ایک خشک ٹہنی اٹھائی۔ انہوں نے کچھ پاؤ کر اس پر پھونکا اور بادشاہ سے کہا، اسے پکڑو۔ وہ بادشاہ نے جیسے ہی وہ لکڑی پکڑی وہ ایک زندہ سانپ بن گیا۔ بادشاہ خوف سے کانپنے لگا اور اس نے فوراً وہ لکڑی پھینک دی۔ بزرگ نے دوبارہ اسے اٹھایا تو وہ پھر سے وہی پرانی لکڑی بن گئی۔ بزرگ نے فرمایا، اے بادشاہ، جب ایک معمولی لکڑی اللہ کے حکم سے سانپ بن کر تجھے ڈرا سکتی ہے تو سوچ وہ خدا کتنا طاقتور ہوگا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ حکومت، یہ ٹھاٹ باٹے سب فانی ختم ہونے والی ہے، صرف نیکی اور ایمان باقی رہے گا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، وہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ظلم و زیادتی کی معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران بن گیا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حکایت: ایک ظالم بادشاہ اور جنگل کا درویش۔ بہت سال پہلے ایک بادشاہ تھا جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ये बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दिखा मुझे कोई कराम, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर फूंका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। वो बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ए बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे ला सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब पानी खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपने जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसान पसंद और रहमदिल हुक्मरान बन गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत, एक जालिम बादशाह और जंगल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ये बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दिखा मुझे कोई कराम, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर फूंका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। वो बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ए बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे ला सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब पानी खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपने जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहमदिल हुक्मरान बन गया। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत, एक जालिम बादशाह और जंगल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, हे बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दिखा मुझे कोई करामत, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई।
उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर थूका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। ओ बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे डरा सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब फानी, खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत, एक जालिम बादशाह और जनरल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दुखा मुझे कोई करा, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूँ। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर थूका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। ओ बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे डरा सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब फानी, खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत, एक जालिम बादशाह और जनरल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ये बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दुखा मुझे कोई करा, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर थूका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। ओ बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे डरा सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब फानी, खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म व ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी।
इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत: एक जालिम बादशाह और जंगल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दुखा मुझे कोई करा, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूँ। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर फूंका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। वो बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गया। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ए बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे ला सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब पानी खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपने जुल्म और ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। हकायत: एक जालिम बादशाह और जंगल का दरवेश। बहुत साल पहले एक बादशाह था जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। वो समझता था कि पूरी दुनिया इसके कब्जे में है और वो जो चाहे कर सकता है। एक दिन वो शिकार के लिए जंगल गया और अपने सिपाहियों से बिछड़कर एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां इसने देखा कि एक नेक बुजुर्ग अल्लाह वाले सुकून से बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बादशाह ने गरज कर कहा, ए बूढ़े, क्या तू जानता है तेरे सामने कौन खड़ा है? मैं इस सल्तनत का मालिक हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया और कहा, बेटा, मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है, हम सब तो यहाँ मुसाफिर हैं। बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अगर तू इतना ही अल्लाह वाला है तो दुखा मुझे कोई करा, वरना मैं तेरी झोंपड़ी गिरा दूंगा। बुजुर्ग ने ठंडी सांस भरी और जमीन से एक खुश्क टहनी उठाई। उन्होंने कुछ पढ़कर इस पर फूंका और बादशाह से कहा, इसे पकड़ो। वो बादशाह ने जैसे ही वो लकड़ी पकड़ी वो एक जिंदा सांप बन गई। बादशाह खौफ से कांपने लगा और उसने फौरन वो लकड़ी फेंक दी। बुजुर्ग ने दोबारा इसे उठाया तो वो फिर से वही पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे ला सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब पानी खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म और ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी। इस दिन के बाद वो एक इंसाफ पसंद और रहम दिल हुक्मरान बन गया। सबक: इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ताकत और दौलत हमेशा नहीं रहती, इसलिए इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए और हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। पुरानी लकड़ी बन गई। बुजुर्ग ने फरमाया, ए बादशाह, जब एक मामूली लकड़ी अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर तुझे ला सकती है तो सोच वो खुदा कितना ताकतवर होगा जिसने तुझे पैदा किया। ये हुकूमत, ये ठाट बाटे सब पानी खत्म होने वाली है, सिर्फ नेकी और ईमान बाकी रहेगा। बादशाह की आंखों से पर्दा हिट गया। वो उन बुजुर्ग के कदमों में गिर गया और अपनी जुल्म और ज़ियादती की मुआफ़ी मांगी।
اس دن کے بعد وہ ایک انصاف پسند اور رحم دل حکمران بن گیا۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور دولت ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔